اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اس جشن آمد رسول کانفرنس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ممبر نور پر علماء سنت والجماعت کا قافلہ موجود ہے۔ ممبر نور پر استاذ القراء حضرت حافظ و قاری قمر الزمان صاحب قبلہ نظامی تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ استاذ الحفاظ حضرت حافظ و قاری سراج الدین صاحب قبلہ مدنی وہ بھی ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ نقیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری محمد عظیم صاحب قبلہ نوری، نقیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری عبدالوکیل صاحب قبلہ، شہنشاہ ترنم جناب ہلال ٹانڈوی صاحب اور قاری نصیر الدین صاحب ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ واصف شاہ ہدیٰ جناب ضیاء یزدانی صاحب بھی ممبر پر تشریف لائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ خطیب اہل سنت حضرت علامہ وسیم اختر عزیزی صاحب قبلہ بھی کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ آج کا یہ پروگرام بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی عقیدتوں کے ساتھ حافظ و قاری محمد اشرف قادری، مہتاب اسماعیلی، حافظ حبیب ضمیر الدین اور دیگر حفاظ کرام نے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان طلباء کرام پر رحمت نور کی بارش عطا فرمائے، ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض معروف سے پیش کر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، مدنی سرکار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور باواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مادر علمی دارالعلوم اہل سنت تنویر الاسلام امر ڈوبا کے بہت سارے طلباء کرام بھی اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ اور آج کا یہ پروگرام یہ مت سوچیے گا کہ صرف امر ڈوبا کی زمین پر ہو رہا ہے اور صرف امر ڈوبا ہی کے لوگ سماعت کر رہے ہیں، بلکہ آج ہندوستان کا عظیم نیٹ ورک علی جناب توحید بھائی کا توحید نیٹ ورک، اظہر بھائی کا مدنی اظہری نیٹ ورک، اور مولانا سراج صاحب کا سراجیہ چینل، اور حافظ و قاری محفوظ صاحب قبلہ کا واحدی قادری نیٹ ورک، اور بھی احباب ہیں جو آئے ہوئے ہیں اپنے اس پروگرام کو کور کرنے کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان پر بھی اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ حضرات محترم، یہ پروگرام بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اس پروا ترکلوا کی زمین پر حافظ و قاری محمد اشرف رضا قادری نے بڑی محنت کیا، تب جا کر یہ پروگرام آج آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہندوستان کا عظیم
لہجہ منبر پر ہے اور آنے والا بھی ہے۔ یہ سب آج ہمارے قصبے میں کیوں آئے ہوئے ہیں، ہمارے گاؤں میں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آج حافظ و قاری اشرف قادری نے ان لوگوں کو مدعو کیا کہ یہ لوگ آئیں اور نعتیہ کلام سے ہم اور آپ کو سنائیں، اور ہم ان کی نعتیہ کلام اور تقاریر کو سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ الگ بات ہے مسلمانوں کہ جب طلباء کرام کسی نیک کام کو کرتے ہیں، جب اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ہمارے ہی گاؤں، ہمارے ہی قصبے کے لوگ اس پر ٹپڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر آپ ناچ اور گانے کی محفل کرو نا، آپ نے محسوس کیا تھا کھیل کا میدان تھا تو مسلمان وہاں چندہ دینے کے لیے کس طریقے سے اپنے نام کو بلانے پر آمادہ تھا، فخریہ انداز سے کہتا تھا کہ میں اتنا چندہ دے رہا ہوں، میں اتنا دے رہا ہوں۔ لیکن جب طلباء کرام کسی جشن کے لیے، نبی کے میلاد کے پروگرام کے لیے ہمارے گھر پر جاتے ہیں، تو آج کا کچھ ایسے بدبخت قسم کے انسان ہے جو ان پر ٹپڑی کرنے پر آمادہ ہے، جو ان کی عزت و وقار کے ساتھ کھلواڑ کرنے پر آمادہ ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج دنیا کے اندر تم غلط طریقے سے اپنی زندگی کو پیش کر سکتے ہو، مگر ایک دن تمہیں قبر کی منزلوں کو طے کرنا ہے۔ ایک دن تمہیں دنیا سے گزر کر تمہیں قبر کی آخری منزلوں کو دیکھنا ہے۔ اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ وہ کھیل کا میدان کام نہ آئے گا۔ جو چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر علماء کے خلاف تم ٹپڑی کرتے ہو، وہ علماء کے خلاف ٹپڑی کرنا تمہارا کام نہ آئے گا۔ یاد رکھ مسلمان، اگر دنیا میں کچھ کام آنے والا ہے تو پیغمبر اسلام کی محبت کام آنے والی ہے۔ نبی کی محبت کا نام یہ ہے کہ تم علماء سے محبت کرو، طلباء سے محبت کرو، قرآن کے حافظ سے محبت کرو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، تمہاری دنیا بھی سنورے گی، تمہاری آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت حافظ و قاری نثار احمد صاحب قبلہ نظامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جانتے ہو کیوں کہا تھا؟ آج کے ماحول کو پڑھ کر کہا تھا۔ میرے دوست، میرے ساتھی حافظ و قاری محمد ثاقب صاحب قبلہ تنویری، جو میرے بڑے عزیز دوست ہے، صرف امرڈوبہ نہیں دنیا جانتی ہے کہ میرے بڑے قریبی دوست ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں، مجھے ان کے ذریعے سے پتہ چلا۔ نعرہ رسالت، شاعر اسلام جیازدانی بہرائچ بھی، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں آپ کے گھر کا ہوں، میں آپ کا بیٹا یا بھائی ہوں۔ میں اصلاح کرنے کی غرض سے آیا ہوں کہ کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے، ان کا دماغ ٹھیک بھی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ماحول اس طریقے سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کسی نچنیے کو بلا کر ناچ کراؤ نا تو کوئی چائے کی دکان پر بیٹھ کر ٹپڑی نہیں کرتا ہے، اگر کسی ڈانس کے پروگرام کو رکھو تو کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھاتا ہے، مگر ان کا ماتھا تبھی ٹنکتا ہے جب نبی کے میلاد کا پروگرام ہو، ان کا ماتھا تبھی خراب ہوتا ہے جب پیغمبر اسلام کے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہو۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ گے تو کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ تم سے بھی اس کا سوال پوچھے گا، اس کی بارگاہ میں تم کیا جواب دو گے؟ یاد رکھو مسلمانوں، ایسے لوگوں سے رشتہ ناتا توڑ کر تم پیغمبر اسلام کی محبت میں سرشار ہو کر نبی کی غلامی کو اختیار کیا کرو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہو، رب تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحمتوں کی برسات عطا کرے گا، تمہاری دنیا بھی سنورے گی، تمہاری آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پیغمبر کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت ماجیہ و حاضرہ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان پکار کر کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، واللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے،
तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ए मुसलमानों, ये कौन आला हजरत, वो आला हजरत अजीमुल बरकत, जब इसी भारत की जमीन पर हमारे ईमान और अकीदे को छीना जा रहा था, मजहब इस्लाम की तालीम को लोग बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, जब पैगम्बर इस्लाम के इल्म गैब पर एतराज किया जा रहा था, नबी की तहारत पर एतराज किया जा रहा था, तो बर्रे सगीर का मुसलमान परेशान था। बर्रे सगीर के मुसलमानों की ईमान और अकीदे को छीनने की बात की जा रही थी। बर्रे सगीर का मुसलमान मौला की बारगाह में रो रहा था कि ए रब तबारक का बताला, हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत कैसे होगी। तो ए मुसलमानों, रब तबारक का बताला ने बर्रे सगीर के मुसलमानों की फरियाद सुनकर एक बच्चे की विलादत बशहादत शव्वालुल मुकर्रम बरोज सनीचर के दिन मोहल्ला सौदागरान बरेली की मुकद्दस जमीन पर एक बच्चा पैदा होता है। दुनिया उसको अहमद रजा खान कहती है, मगर वो आला हजरत बनकर पूरी दुनिया में चमकता हुआ नजर आता है। इसलिए मुसलमानों कि उन्होंने जब जिक्र किया तो अपने बाप या दादा का नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम का जिक्र किया। तो जो नबी का जिक्र करता है, रब तबारक व तआला उसके मकाम मर्तबे को बढ़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आला हजरत अजीमुल बरकत की जिंदगी की तारीफ उठाओ। अभी आला हजरत हिंदुस्तान की जमीन पर तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी भारत की जमीन पर उनका कदम नहीं पड़ा है। इसी भारत की जमीन पर एक खानका है जिसको खानकाह शिराजिया कहा जाता है। ए मुसलमानों, आला हजरत की पैदाइश से 170 साल पहले का वाक़या आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। अभी आला हजरत दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, बल्कि उनकी पैदाइश से रखो। इसी भारत की जमीन पर एक स्टेट है जिसे गुजरात कहा जाता है, उसी गुजरात की सरजमीन का वाक़या है। उसी गुजरात की जमीन पर एक जिला है जिसे राजकोट कहा जाता है। उसी राजकोट के अंदर एक खानका है जिसे खानकाह शिराजिया कही जाती है। उसी खानका के सज्जादा नशीर हजरत सैयद मोहम्मद सालेह शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत पाए गुजरे हुए हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम रब्बानी गुजरे हुए हैं। ए मुसलमानों, एक दिन दरसे हदीस अपने तलबा को पढ़ा रहे थे। जिस तरीके से तलबा आज दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम में बैठकर अपने असातिज़ा के सामने दो सालों बैठ जाते हैं, असातिज़ा हदीस रसूल पढ़ाते हैं, इसी तरीके से राजकोट की सरजमीन पर खानकाह शिराजिया के अंदर हजरत सैयद मोहम्मद सालेह शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका पढ़ा रहे हैं। ए मुसलमानों, इल्म गैब की हदीस मुबारका है। जैसे ही हजरत सैयद मोहम्मद सालेह शिराजी बुखारी शरीफ की हदीस इल्म गैब के ताल्लुक से पढ़ रहे थे, अचानक उन्हें गशी तारी होती है, अचानक उन्हें नींद आ जाती है। इतने में क्या देखते हैं तलबा कि उनके माथे पर शिकन आ जाता है, चेहरा सुर्ख हो जाता है। तलबा हैरान और परेशान है। इतने में ही थोड़ी देर में हजरत सैयद मोहम्मद सालेह शिराजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। अपनी आंख को खोलते हैं, कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह। ए मुसलमानों, जैसे ही हजरत सैयद मोहम्मद सालेह शिराजी ने अपनी जबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, तलबा अपने उस्ताद की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। सरकार, आपके चेहरे पर अभी हमने शिकन देखा, उसके बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, सरकार इसमें वजह क्या है? हजरत सैयद मोहम्मद सालेह कहते हैं कि जब मैं इल्म गैब के ताल्लुक से हदीस पढ़ा रहा था तो मुझे नींद आ गई और उस वक्त मेरे कल्ब को इल्हाम आया, मुझे बताया गया कि एक फिरका ऐसा आएगा भारत की जमीन पर जो अभी दुनिया के अंदर नहीं है, जो नबी के इल्म गैब पर एतराज करेगा, पैगंबर इस्लाम की तहारत पर एतराज करेगा, पैगंबर इस्लाम को मरकर मिट्टी में कहने वाला फिरका माशअल्लाह रब्बिल आलमीन अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाया है, मगर वो फिरका बहुत जल्द आने वाला है। हजरत सैयद मोहम्मद सालेह शिराजी कहते हैं कि उसके बाद मैंने कहा कि ए मेरे तलबा सुनो, जब मुझे ये खबर दी गई तो मैं हैरान और परेशान हो गया। मैं सोचने पर आमादा हो गया कि ए मौला तबारक व तआला, जब इल्म गैब मोहम्मद मुस्तफा पर एतराज किया जाएगा तो क्या उस वक्त कोई उसका रद्द करने के लिए नहीं आएगा? तो रब तबारक व तआला की तरफ से फिर मेरे कल्ब को इल्हाम आया तो मैंने सुभान अल्लाह की सदाओं को बुलंद किया। ए मेरे तलबा, रब्बे कायनात की तरफ से ये पैगाम आया कि सैयद सालेह शिराजी, तुझे पता नहीं है कि जब ये फिरका जन्म लेगा तो मैं एक कायद को, एक रहनुमा को जरूर दुनिया के अंदर भेजूंगा। सैयद मोहम्मद सालेह शिराजी कहते हैं, ए मेरे तलबा बताओ, क्या मैं उनके बारे में कुछ बता दूं? क्या उनके नाम को बता
बता दो, हजरत सैयद मोहम्मद सालेह शिराजी ने जब अपने तलबा से इतना कहा तो तलबा ने कहा था सरकार अगर उनके बारे में आप बता देते तो बहुत बेहतर होता, आप उनके बारे में खबर दे देते तो हमें भी पता चल जाता। हजरत सैयद मोहम्मद सालेह शिराजी आला हजरत की पैदाइश से 170 साल पहले बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि ए मेरे तलबा, एक बच्चा हिंदुस्तान की जमीन पर एक स्टेट है जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उसी उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक शहर है जिसको शहर बरेली कहा जाता है, उसी बरेली की मुकद्दस जमीन पर एक बच्चे की विलादत होगी। ए मेरे तलबा क्या उसके नाम को भी बता दो। तलबा ने कहा था सरकार अगर वो बता देते तो बेहतर होता। तो सैयद मोहम्मद सालेह शिराजी कहते हैं ए मेरे तलबा सुनो, उस बच्चे का नाम अहमद रजा खान रखा जाएगा। वो बच्चा जमाने में आला हजरत बनकर पैगंबर इस्लाम के इश्क को लोगों के सामने पेश करता हुआ नजर आएगा। कहेगी कि वादी रजा की वो है हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह। बहुत हजरात मोहतरम, मैं आमद रसूल के ताल्लुक से भी गुफ्तगू कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आला हजरत पर यहाँ बोलना ज़रूरी है। इसी बुनियाद पर मुझे इस मौजू को लेना पड़ा। आओ मैं आपको बताता चलो, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत की ज़िंदगी की तारीख उठाओ। यही आला हजरत अजीमुल बरकत की ज़िंदगी है। ए मुसलमानों, जब इनकी ज़िंदगी की तारीख उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि आला हजरत अजीमुल बरकत एक आलिम रब्बानी का नाम नहीं, बल्कि वली कामिल का नाम आला हजरत अजीमुल बरकत है। एक आशिक रसूल का नाम आला हजरत अजीमुल बरकत है। हकीकत में मुसलमानों, आज जो हमारे मदरसे महफूज है ये आला हजरत अजीमुल बरकत की वजह से महफूज है। हकीकत में मुसलमानों, आज हमारे ईमान अकीदे को छीन लिया जाता, मगर आला हजरत अजीमुल बरकत ने बरेली की मुकद्दस जमीन से हमारे ईमान अकीदों की हिफाजत किया है। आओ मैं आपको बताता चलो, यही आला हजरत अजीमुल बरकत एक मरतबा शहर बरेली की जमीन से हज बैतुल्लाह के लिए मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर तशरीफ ले जाते हैं। उनके साथ उनके बड़े शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम भी उनके साथ गए हैं। ए मुसलमानों, जैसे ही मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर पहुंचे ना, हरम शरीफ के अंदर पहुंचते हैं। हकीकत में मुसलमानों, उसी मक्का की जमीन पर कुछ लोगों ने इल्म गैब मुस्तफा पर एतराज किया था। इल्म गैब मुस्तफा के ताल्लुक से कुछ रिवायतों को पेश किया था और उस वक्त के खलीफा, उस वक्त के बादशाह, तुर्कियों की हुकूमत की उस वक्त के बादशाह का नाम अली पाशा था, जो मक्का और मदीनतुल मुनव्वरा का गवर्नर था। हकीकत में अली पाशा की बारगाह में उस लेटर को दिया गया और कहा गया कि इल्म गैब मुस्तफा पर हमें कोई तहरीर चाहिए, कोई ऐसी दलील चाहिए कि हम मान जाएं कि हाँ नबी के पास इल्म गैब है। ए मुसलमानों, उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर चारों मसलक के इमाम मौजूद थे। मसलक हनफी के इमाम मौजूद थे, मसलक मालिकी के इमाम मौजूद थे, मसलक शाफई के इमाम मौजूद थे, मसलक मालिकी के इमाम मौजूद थे। मगर हकीकत में जब उस लेटर को उन लोगों के सामने दिया गया ना, तो एक दूसरे को दे रहा है, दूसरे तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है। इस तरीके से वो लेटर इधर उधर दौड़ रहा है, मगर कोई जवाब लिखने के लिए तैयार नहीं होता। मगर उन लोगों में एक ऐसे आलिम दीन थे। उन लोगों ने कहा कि ए लोगों सुनो सुनो, तुम लोग लिखने से कतराते हो, मगर सुनो, हिंदुस्तान की जमीन से एक शानदार आलिम रब्बानी आज मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर हज करने के लिए आए हैं। उनकी बारगाह में तो जरूर वो इस पर कोई किताब लिख देंगे। हकीकत में मुसलमानों, जब उस लेटर को ले जाकर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे बिज्जते माजिया व हाजरा की बारगाह में पेश किया गया ना, तो आला हजरत सफर की थकान भी मौजूद थी और ए मुसलमानों, उनके साथ साथ उनके बुखार भी बहुत तेज था। जब आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में वो लेटर पेश किया गया, वो खत पेश किया गया, तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने बड़े शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को हुक्म दिया कि मेरे बेटे हामिद रजा खान, तुम एक किनारे कलम और कापी लेकर बैठ जाओ और मैं बोल रहा हूं, तुम इस पर दलीलें पेश करो। हकीकत में आला हजरत दलील दे रहे हैं, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम लिखना शुरू करते हैं। ए मुसलमानों, इसमें उलमाए किराम ने अपने आप में इख्तिलाफ पैदा किया। आलिम उलमा का बयान है, कुछ मुफ्तियाए किराम, कुछ फुकहाए
उलमाए इज़ाम बयान करते हैं कि आला हजरत ने 200 सफ़ा पर किताब लिखी, कोई कहता है कि 500 सफ़ा पर किताब लिखी, लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत ने मक्कतुल मुकर्रमा की पाक जमीन पर हरमे काबा के अंदर, काबा के सहन में, ए मुसलमानों, आला हजरत अजीमुल बरकत एक किताब को तहरीर करते हैं सिर्फ 8.5 घंटे के अंदर। उस किताब को अद-दौलतुल मक्किया कहा जाता है। हकीकत में मुसलमानों, उस किताब को ले जाकर जब अली पाशा की बारगाह में पेश किया गया, अली पाशा ने जब उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो ऐसा मालूम पड़ रहा था, ऐसा पता चल रहा था कि ये कोई अजमी की आवाज नहीं, ये तो कोई अरबी आलिम दीन है। हकीकत में अली पाशा आला हजरत अजीमुल बरकत को अपनी बारगाह में बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है, ए बरेली के मौलाना, ए हिंदुस्तान के आलिम रब्बानी, मांगो तुम क्या मांगते हो, जो भी मांगोगे वो अता किया जाएगा, जो भी कह दोगे आज तुम्हें दिया जाएगा। हकीकत में मुसलमानों, अगर आज के दुनिया का कोई इंसान होता तो उस वक्त का बादशाह कह रहा था, मांग क्या मांगते हो मैं तुझे दूंगा, तो मांगने वाले हीरे जवाहरात भी मांग सकते थे, सोने और चांदी भी मांग सकते थे, मगर वो आला हजरत अजीमुल बरकत की ज़ाते बाबरकत थी। आला हजरत अजीमुल बरकत ने पैगंबर इस्लाम का इश्क अपने सीने में बसाए थे, नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत को अपने सीने में बसाए थे। अली पाशा की बारगाह में अर्ज करते हैं, मुझे पता चला है, मुझे मालूम हुआ है कि मस्जिद नबवी के अंदर नमाज इशा के बाद नमाजियों को बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक खत ऐसा तहरीर करें कि जब मैं मस्जिद नबवी में पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचो, जब अपने आका की बारगाह में पहुंचो तो इशा के नमाज के बाद मुझे पूरी रात नबी के मजार पर हाजिरी देने के लिए कहा जाए। अली पाशा आला हजरत से इतने खुश थे कि फौरन एक तहरीर लिखते हैं। उसके बाद आला हजरत अजीमुल बरकत मस्जिद नबवी का रुख करते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा की पाक ज़मीन पर पहुंचते हैं। मस्जिद नबवी में जैसे ही हाजिरी हुई, नमाज इशा पढ़ते हैं। इशा की नमाज के बाद ए मुसलमानों, आला हजरत अजीमुल बरकत पैगंबर इस्लाम के मज़ार अक़दस में हाजिर हो जाते हैं। नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, आज अहमद रजा हिंदुस्तान की जमीन से आपकी ज़ियारत करने के लिए आया है। या रसूल अल्लाह, बरेली की जमीन पर जब था तो या रसूल अल्लाह, ख्वाब में आपने बहुत मर्तबा दीदार कराया। ये मेरे आका, आज आपका आशिक हिंदुस्तान की जमीन से चलकर आज आपके मज़ार पर हाजिरी देने के लिए आया है। या रसूल अल्लाह, अगर आज ज़ियारत करा देते तो मेरे लिए सबसे बड़ी मेराज हो जाती। या रसूल अल्लाह, मैं आपके रुखे अनवर को देखना चाहता हूँ, मैं आपके रुखे ज़ेबा को देखना चाहता हूँ, आपके वद्दुहा वाली सूरत को देखना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, आप रुखे अनवर को दिखाइए। हकीकत में मुसलमानों, जब आला हजरत अजीमुल बरकत मस्जिद नबवी के अंदर, जब आला हजरत ने नबी की बारगाह में इस तरीके से नजराने अकीदत को पेश किया तो ए मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने बनब से नफीस आला हजरत अजीमुल बरकत की निगाहों के सामने आ गए। और उसी वक्त आला हजरत ने कहा था कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। ए मुसलमानों, एक का जुमला कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जब चीज निगाहों के सामने हो तब यह कहा जाता है। अगर कोई चीज तो हमसे ओझल हो तो उसे वो कहा जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान की इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के अहले सुन्नत, हक है, सच है, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत हज़रात मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पुरफतन दौर के अंदर मसलक हनफी का तर्जुमान सिर्फ मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत के अकीदे पर जो कायम दाइम रहा, हकीकत में रब तबारक व तआला उसे जन्नतुल फिरदौस में ज़रूर आला मकाम अता करेगा। और आला हजरत अजीमुल बरकत के अकीदे को भी मुलाहिज़ा करो मुसलमानों। आला हजरत के अकीदे का नाम सिर्फ ये नहीं है कि तुम सरकारे गौसे आज़म की याद में सिर्फ मुर्गा ज़बा कर लो।
आला हजरत अजीम उल बरकत की याद का नाम ये नहीं है कि मिलादुन नबी के मौके पर सिर्फ जुलूस निकाल लो, सिर्फ झंडे लगा लो। आला हजरत अजीम उल बरकत के अकीदे का नाम ये है कि आला हजरत कहते हैं कि पहले तू नमाजों की पाबंदी कर, पहले तू कुरान की तिलावत कर, पहले तू शरीयत मुस्तफा पर चलने की कोशिश कर, पहले तू अपने माँ बाप का एहतराम कर, पहले तू अपने असातिज़ा का एहतराम कर, पहले तू अपने पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी कर। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जिस दिन इन तमाम बातों पर अमल करके तू अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करेगा, रब तबारक व तआला उस दिन तुझे कामयाबी व कामरानी अता। क्या कहने माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने का मकसद ये है, आओ आला हजरत अजीम उल बरकत की जिंदगी की तारीख उठाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज के अंदर, माशरे के अंदर किस तरीके से आज लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर आमादा है। आला हजरत अजीम उल बरकत भी ये मुसलमानों पीर थे, मगर ऐसे पीर नहीं थे जैसे आज समाज के अंदर पीर घूम रहे हैं। आज तो हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे पीर आते हैं कि ना खुद नमाज पढ़ते हैं, ना मुरीद को नमाज पढ़ने के लिए कहते हैं, फिर भी मुरीद बेचारा उन्हीं का नारा लगाने पर आमादा है। आज ऐसी ही बहुत सी खानकाहें हैं जो आला हजरत अजीम उल बरकत से मसलक से अपने आप में ए मुसलमानों जलन और हसद की बुनियाद पर अपने आप में बयान देने पर आमादा है। आला हजरत अजीम उल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी के अंदर अगर पैगाम को आम किया है तो नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत का पैगाम दिया है। आला हजरत अजीम उल बरकत ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर सुन्नत मुस्तफा को आम किया है। आओ मैं आपको बताता चलूं, आज समाज के अंदर बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो अपने माँ बाप को गालियां देने पर आमादा है और कहते हैं कि हम पैगम्बर इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं, हम नबी आखिरुज़्ज़मा से अकीदत करने वाले हैं। याद रखो मुसलमानों, जो माँ बाप की फरमा बरदारी नहीं करता वो ना बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत कर सकता है, ना पैगम्बर इस्लाम से मोहब्बत कर सकता है। जब तुम माँ बाप का एहतराम करोगे तभी तुम बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करोगे, तभी तुम अपने असातिज़ा से मोहब्बत करोगे, तभी तुम अपने उलमा से मोहब्बत करोगे। पहले तुम माँ बाप को तरजीह दो। दावे के साथ कहता हो, जिस दिन तुम माँ बाप के पैगाम पर अमल करके माँ बाप का एहतराम करोगे, रब तबारक व तआला उसी दिन तुझसे राजी हो जाएगा। जब रब्बे कायनात तुझसे राजी हो जाएगा तो तेरी दुनिया भी सबर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवरती हुई नजर। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला निज़ामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। हज़रात मोहतरम, बहुत से लोग ऐसे भी समाज के अंदर हैं, खासकर हमारे इलाके में कुछ बदबख्त पैदा हो चुके हैं जो आज टोली बनाकर आज नबी आखिरुज़्ज़मा का अगर मिलाद ये तलबा करे ना तो इन तलबाए किराम पर भी एतराज़ कर दिया जाता है। इन्हें पता नहीं है कि तलबा का मकाम कितना बुलंद व बाला है। ये तलबा ये उलमा न रहे तो इनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। हकीकत में आज बहुत से लोग इस चीज़ का एतराज़ करते हैं कि ये नबी का मिलाद क्या होता है, हम जलसे में कुछ नहीं ताउन करते, हम इस चीज़ में कुछ नहीं ताउन करते। लेकिन जब खेल कूद का मैदान होता है तो वो लोग सबसे ज़्यादा नाम बुलाने के लिए उतावले होते हैं। मैं कहता हूँ अपने उलमा से, अपने तलबा से, जो लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें उनके घर पर जब जनाजा हो तो उनसे कहा जाए कि खिलाड़ियों को बुलाकर तुम नमाज जनाजा पढ़वाओ, तुम नचनिए को बुलाकर नमाज जनाजा पढ़ाओ, अपने घर का निकाह पढ़ाने के लिए तुम उन्हीं को बुलाओ। हकीकत में जो उलमा का एहतराम नहीं करता, उलमा को भी चाहिए कि ऐसे लोगों का बाइकाट किया जाए। हकीकत में जिस दिन उलमा अपनी एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी क़यादत को मजबूत कर लेंगे, दावे के साथ कहता हो ऐसे बदबख्तों की ज़बान खामोश हो जाएगी। पैगम्बर इस्लाम के ये दीवाने पूरी दुनिया में चमकते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात होता है। हकीकत में मुझे बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हकीकत में
मेरे मादरी इल्मी के तलबा बैठे हैं और मैं जिस दारुल में पढ़ाता हूँ वहाँ के भी मेरे शागिर्द भी बैठे हैं, मैं इनको भी देख रहा हूँ क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मेरे असातिज़ा बिलखुसूस हुज़ूर मुबल्लिग साउथ अफ्रीका खलीफे ताजुशरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती नाज़िम साहब क़िबला की दुआएं हैं और हुज़ूर मुजद्दिद आज़म हिंद हज़रत अल्लामा कारी ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला क़ादरी की दुआएं हैं कि आज निसार अहमद निज़ामी इस लायक हुआ कि आपके सामने बोलने के काबिल हुआ है। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि आज इस समाज और माशरे के अंदर बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इस तरीके की हरकतें करने पर आमादा है, वो बाज भी नहीं आते हैं। हकीकत में मुसलमानों में खास करके अमरोबा के नौजवानों को पैगाम दो कि नौजवानों, तुम ऐसे लोगों के फित्नो फसाद में मत फंसा करो। तुम अपने आप में अल्लाह ने अक्ल शऊर अता किया है, उस अक्ल शऊर का इस्तेमाल किया करो। तुम अपने आप में सोच सकते हो कि ये कहने वाला गलत कह रहा है, वो कहने वाला सही कह रहा है। इन तमाम बातों पर अमल करने की जिम्मेदारी आपको है। हकीकत में मैंने देखा है कि जो उलमाए किराम की चाय की दुकानों पर बैठकर बेइज्जती करते हैं, उन्हीं लोगों को देखा है नेताओं के तलबे को चाटते हुए वही लोग सबसे ज्यादा पीछे नजर आते हैं। हकीकत में मुसलमानों उलमा आ जाए तो उनके लिए कुर्सी देने के लिए खड़े नहीं होते, उलमाए किराम आ जाए तो उनका कोई एहतराम नहीं होता है। आलिम रब्बानी गुजर जाए तो उनके लिए इनके पास मोहब्बत नहीं है, लेकिन कोई नेताजी आ जाए तो उनके पीछे चमचागिरी करने पर ये आमादा है। याद रख मुसलमान, अपनी जिंदगी के अंदर तू चमचागिरी छोड़, नबी की गुलामी को अख्तियार कर। दावे के साथ कहता हो, जो नबी का गुलाम बनकर दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करता है, रब तबारक व तआला उसे दुनिया में भी कामयाब करता है और जब मरकर कब्र में पहुंचेगा तो अल्लाह उसकी कब्र पर रहमतों की बरसात अता करके उसे जन्नत में आला मकाम है ना। इन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश करो मुसलमानों। आपको हक दिया गया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मकाम व मर्तबे को ऊंचा किया है। हकीकत में मुसलमानों, और निसार अहमद निज़ामी इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता। अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा दिया ने मेरे माँ बाप की दुआओं की बदौलत, मेरे असातिज़ा की दुआओं की बदौलत, कि आज ही रात में मैं MP के प्रोग्राम के लिए निकल रहा हूँ। अल्लाह ने वो मकाम मुझे दे दिया है। ये मेरे गाँव, मेरे कस्बा के लोगों की मोहब्बत है, अकीदत है कि अल्लाह ने इस मकाम पर मुझे फाइज किया है। दो चार तो हर गांव हर इलाके में हासिदीन होते हैं, उन दो चार से लेने की कोई जरूरत नहीं है, उन दो चार को अपने पास बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। पैगंबर इस्लाम की दौर में भी अबू जहल मौजूद था। आपने देखा होगा कि अबू जहल ने पैगंबर इस्लाम की बारगाह में किस तरीके से गुमराही पर गुमराही किया करता था। हकीकत में मुसलमानों, नस्ले अबू जहल आज भी पाए जाते हैं, वो हमारे लिबासे में दिखते हुए नजर आते हैं। हम और आपको चाहिए कि ऐसे लोगों की पहचान करके अपने समाज, अपने इलाके से बाइकाट करें, नबी आखिरुल ज़मा की अकीदत सीने में बसाए, क्योंकि नबी की मोहब्बत ही जाने ईमान है। शायर कहता है, मोहब्बत की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खाबी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद। और आला हजरत कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है। आओ मैं आखिरी बात कहता हुआ चलूं, क्योंकि मेहमान भी आए हुए हैं। कुछ लोगों का ये भी एतराज रहता है, अगर प्रोग्राम होना सिर्फ निसार अहमद निज़ामी अगर तकरीर करते तो चाय की दुकानों पर बैठकर ये भी कहते हैं कि बाहर के उलमा को वक्त देना चाहिए था, बाहर के लोगों का एहतराम करना चाहिए था। हकीकत में हम जितना उलमा का एहतराम करेंगे, तुम्हें क्या पता है कि उलमा का एहतराम कैसे होता है, तुम्हें क्या पता है कि उलमाए किराम की कद्र कैसे की जाती है। हकीकत में मुसलमान, इन टिप्पणी जैसे गुफ्तगू से बचने की कोशिश कर। तुम्हें अल्लाह ने आज दुनिया में भेजा है ना, इस चंद दिन की जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी को गीबत व चुगली में बर्बाद ना कर। अल्लाह ने तुझे जिंदगी दिया है तो नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को वक्फ कर। वही लोग हैं मुसलमानों जो नरसिंहानंद के खिलाफ कभी जबान नहीं उठाते हैं, वो साध्वी पराचा के खिलाफ कोई बात नहीं उठाते हैं। अगर जबान खुलती है तो सिर्फ उलमा के खिलाफ जबान खुलती है, और जुबान खुलती है तो असातिज़ा के खिलाफ जबान खुलती है। ऐसे लोग हमारे समाज से निकलना चाहिए। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जिस दिन ऐसे लोगों का बाइकाट होगा, हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी। क्योंकि शायर कहता है, गलत रवि से मनाजिल के बहुत बढ़ते हैं, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल।
हजरात मोहतरम, आओ आला हजरत अजीम उल बरकत की बात करता हुआ चलो। एक आखिरी बात आप मुझसे सुनते चले, क्योंकि वक्त की किल्लत है, वक्त भी ज्यादा हो रहा है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा आज मिंबर पर तशरीफ लाए हुए हैं। याद रखो मुसलमानों, मेरी बात को सुनते हुए चलो। आला हजरत अजीम उल बरकत की जिंदगी की तारीख उठाकर देखो। आला हजरत अजीम उल बरकत ने यतीमों को किस तरीके से मदद किया है, यतीमों को किस तरीके से ख्याल किया है। आला हजरत अजीम उल बरकत का नाम सिर्फ ये नहीं है, आला हजरत को हम खान पठान की बुनियाद पर नहीं मानते। आला हजरत को आज उलमा जो इज्जत देता है वो इश्क रसूल की बुनियाद पर इज्जत अता करता है। हकीकत में मुसलमानों, आला हजरत अजीम उल बरकत है अपने नबी की सुन्नतों पर किस तरीके से अमल करते हैं, अपने पैगंबर की सुन्नतों पर किस तरीके से अमल करते हैं। आओ मैं आला हजरत की बात करते हुए चलो। आला हजरत अजीम उल बरकत बरेली की मुकद्दस जमीन है, बरेली की मुकद्दस जमीन पर आराम कर रहे हैं। ए मुसलमानों, उनके साथ अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी भी बैठे हुए हैं। आला हजरत की आखिरी वक्त का मामला है, यानी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आला हजरत पहुंच चुके हैं। बुढ़ापे के मंजिल का ये मामला है। आला हजरत अजीम उल बरकत अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी के साथ अपने हुजरे में आराम कर रहे थे। इतने में ए मुसलमानों, उसी बरेली की मुकद्दस जमीन से एक मासूम छोटा सा बच्चा आला हजरत अजीम उल बरकत की बारगाह में पहुंचता है। पहुंचने के बाद सलाम अर्ज करता है, कहता है बड़े मौलाना साहब, आज मैं आपकी अपने घर पर दावत देने के लिए आया हूँ। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं कि ए मेरे सरकार, आप कैसे इस बच्चे की दावत को कबूल कर सकते हैं? डॉक्टर ने आपको परहेज का खाना खाने के लिए कहा है, डॉक्टर ने आपको मना किया है, आप कोई दावत नहीं ले, आप परहेज का खाना खाए। आला हजरत अजीम उल बरकत उस मासूम से बच्चे को देखकर मुस्कुरा कर कहते हैं, ए बच्चे ये बता, क्या तेरे घर में कोई बड़ा नहीं है? तू आज हमारे घर पर, हमारे दरवाजे पर दावत देने के लिए आया है। बच्चे की आंख में आंसुओं के कतरात आ गए, बच्चा आंखों में आंसुओं को लेकर रोने लगा। आला हजरत अजीम उल बरकत इरशाद फरमाते हैं, ए मासूम तू रो क्यों रहा है? उस बच्चे ने कहा था, सरकार आला हजरत, ए बरेली के बड़े मौलाना साहब, मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका है। मैं दुनिया के अंदर, दुनिया मुझे यतीम कहती है, मैं और मेरी माँ जिंदगी को बसर करते हैं। आला हजरत अजीम उल बरकत अब उस यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, ए मासूम से बच्चे बता, मैं जरूर तेरे घर पर दावत खाने के लिए जाऊंगा। तेरे घर पर दावत कब जाना है खाने के लिए? मासूम सा बच्चा कहता है, बरेली के बड़े मौलाना साहब, ये तो मैं भूल गया कि आपकी दावत शाम में है या दोपहर में, मैं जाकर माँ से पूछ कर आता हूँ। आला हजरत अजीम उल बरकत ने कहा, ए बच्चे तू घर को चला जा और अपनी माँ से पूछ कर आ जा। हकीकत में तेरी माँ जब कहेगी तब मैं तेरे घर पर दावत खाने के लिए आ जाऊंगा। बच्चा दौड़े दौड़े अपने माँ के पास पहुंचा, माँ से दरियाफ्त करके उसके बाद बरेली के बड़े मौलाना साहब के पास पहुंचता है, आला हजरत अजीम उल बरकत के पास पहुंचता है। हकीकत में मुसलमानों, जैसे ही आला हजरत की बारगाह में पहुंचा ना, वो बच्चा कहता है कि ए बरेली के बड़े मौलाना साहब, मेरी माँ ने कहा है कि कल दोपहर की दावत आपको मेरे घर पर खाना है। आला हजरत अजीम उल बरकत मुस्कुराकर उस बच्चे से कहते हैं, ए बच्चे तुम मेरी दावत ले रहे हो, बताओ मेरी दावत तो ले रहे हो, मुझे अपने घर पर दावत में क्या खिलाओगे? हकीकत में मुसलमानों, वो बच्चा कहता है कि बड़े मौलाना साहब, मैं तो एक यतीम हूँ, मेरी माँ किसी तरीके से जिंदगी बसर करती है, मेरे घर पर मुल्क मुसल्लम तो नहीं मिलेगा, मेरे घर पर तो गोश्त नहीं मिलेगा, मेरे घर पर तरह तरह का पकवान तो नहीं मिलेगा, मगर ए बड़े मौलाना साहब, मेरे घर पर एक चने का साग रखा गया है, जौ का कुछ आटा रखा गया है, उसी की रोटी और चने का साग आपके बनाकर खिलाया जाएगा। ए मुसलमानों, जरा कलेजे पर हाथ रखकर मुझे बताओ, आज हमारे समाज के अंदर, हमारे गांव के अंदर अगर किसी पीर की आमद हो जाए, उससे कह दो कि आपके लिए हम चटनी रोटी का इंतजाम किए हैं, तो हकीकत में मुसलमानों, पीर साहब नाराज हो जाते हैं, अपने मुरीद पर भड़क जाते हैं, अपने मुरीद के खिलाफ बातें करने पर आमादा हो जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत पीरों को मैंने खुद देखा है कि वो गालियां भी देने पर आमादा हो जाते हैं कि तू अपने पीर का एहतराम नहीं करता, अपने पीर के मकाम को नहीं समझता, तू बैठने का इंतजाम अच्छा नहीं कर रहा है। इस तरीके से ए मुसलमानों, वो फरमान पर फरमान जारी करते हैं, मगर कुर्बान जाओ बरेली के ताजदार पर, कुर्बान जाओ आला हजरत अजीम उल बरकत पर, कुर्बान जाओ बरेली के इमाम पर। हकीकत में मुसलमानों, उस यतीम बच्चे ने कहा है, ए बड़े मौलाना साहब, मेरे घर पर चने का साग है, उसी साग को बनाया जाएगा, जौ की रोटी है उसी को बनाया जाएगा और उसी को आपके सामने पेश किया जाएगा। हकीकत में मुसलमानों, सरकार आला हजरत अजीम उल बरकत कहते हैं, ए बेटे मैं जरूर तेरे घर पर खाना खाने के लिए आऊंगा। हकीकत में मुसलमानों, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं, सरकार आप मत जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, चने का साग डॉक्टर ने आपको मना किया है, आप ना खाए तो बेहतर होगा। आला हजरत अजीम उल बरकत ने कहा, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी, मैं जरूर उस बच्चे की दावत पर
लब्बैक कहकर उसके घर जाऊंगा, मैं जरूर उसके घर पर दावत खाऊंगा। जब दूसरा दिन हुआ ना तो आला हजरत अजीमुल बरकत अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी को अपने साथ लेकर ए मुसलमानों उसी बच्चे के घर की तरफ जाते हैं। जैसे ही बच्चा अपने दरवाजे पर इंतजार कर रहा था, जैसे ही बच्चे ने आला हजरत अजीमुल बरकत को देखा, उसकी दुनिया दिल की दुनिया बदल गई। वो अपने आप में मगन हो गया। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब बच्चे हमारी निगाहों के सामने होते हैं, कोई आ जाए ना, अगर बच्चे देख लेते हैं तो अपने आप में खुशियों में झूम जाते हैं। वो बच्चा भी खुशी से झूम गया, अपनी अम्मी पाक के पास पहुंचा और कहने लगा, माँ बरेली के बड़े मौलाना साहब आज हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं, बरेली के बड़े मौलाना साहब आज हमारे घर पर आ रहे हैं। ये मुसलमानों, वो बच्चा कहता है, अम्मी कोई चीज दो जो बिछा दिया जाए। उसकी अम्मी कहती है, बेटा घर में तो कोई अच्छी चीज नहीं है, मगर ये फटा पुराना टाट है, इसी को ले जाकर उनकी बारगाह में पेश कर दो। हकीकत में मुसलमानों, वो यतीम बच्चा, मासूम सा बच्चा उसी फटे पुराने टाट को लेकर आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में आता है। कहता है, बड़े मौलाना साहब आप इसी को बिछा लीजिए और यही दरवाजे के सामने जो चबूतरा बना है उसी पर आप बैठ जाइए, कलेजे पर हाथ रखो। मुसलमानों, आज के इस दौर फतन के अंदर अगर कोई पीर साहब हमारे घर पर आ जाए और उसको दरवाजे के चबूतरे पर बिठा दो तो उनके शान के खिलाफ हो जाएगा। हकीकत में मुसलमानों, आज के दौरे जमाना के अंदर 70 से 75% पीरों का मामला ये हो चुका है कि वो मुरीद को जन्नत का रास्ता नहीं सिखाते हैं, वो तो मुरीदों को यही सिखाते हैं कि फला सिलसिले को गाली दो, फला सिलसिले को बुरा करो। आज पीरों ने इसी तरीके से अपनी खानकाहों, अपने आप को बर्बाद करके रख दिया है। याद रखो मुसलमानों, तुम अपना फैसला खुद किया करो। जो पीर तुम्हें पैगंबरे इस्लाम की मोहब्बत का दर्श दे, तुम्हें माँ बाप का दर्श दे, तुम्हें असातिज़ा का इहतराम का दर्श दे, ऐसे पीर का दामन पकड़ा करो। जब ऐसे पीर के दामन से वाबस्ता होगे तभी रब तबारा का बताना तुम्हें जन्नत में आला मकाम आता। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है ना। तो हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, वो भी एक पीर है मुसलमानों। आला हजरत जैसा पीर आपकी निगाहों के सामने है, कोई आशिक इस दौर में बताओ जो आला हजरत अजीमुल बरकत के मकाम पर होता हो, जो आला हजरत अजीमुल बरकत जैसा इश्क पेश किया हो। वही आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मिल्लत माजिया व हाज़रा, इमाम इश्क व मोहब्बत चबूतरे पर ए मुसलमानों उसी टाट से साफ करते हैं, फिर टाट खुद बिछाते हैं। उसके बाद उसी टाट पर आला हजरत अजीमुल बरकत बैठ गए और उनके साथ अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी बैठ गए। जानते हो उनका घर कोई ऐसे नहीं कि अपने आप में किसी मोहल्ले में था, मेन शहर में मेन रोड के सामने उस बच्चे का घर था। हकीकत में लोग बाजार में आते जाते थे, वो देखते थे कि ये देखो आज नवाब साहब आज यहाँ पर बैठे हैं, बरेली के सबसे बड़े मौलाना साहब आज टाट पे बैठे हुए हैं। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना साहब आप यहाँ बैठे हो, तो आला हजरत अजीमुल बरकत कहते कि जाओ जाओ तुम अपने घर को जाओ, ये बच्चे ने तुम्हारी दावत नहीं की है बल्कि आज अहमद रजा की दावत की गई है। अहमद रजा यहाँ बैठने के लिए आया हुआ है। आला हजरत अजीमुल बरकत उसी टाट पर बैठे हुए हैं। हकीकत में मुसलमानों को यतीम बच्चा अपने आप में थाली में लेकर उसी जौ की रोटी को और चने के साग को लेकर आता है, उसी फटे पूरी टाट पर रख देता है। आला हजरत अजीमुल बरकत अब उसको खाना शुरू करते हैं। जैसे ही एक लुकमा खाए, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं सरकार अब यहीं पर बस कह दीजिए, इसलिए कि आप उनकी वाली कर चुके हैं, बच्चे का दिल रख चुके हैं। हकीकत में मुसलमानों आला हजरत का परहेज था, मगर आला हजरत वही नहीं रुकते हैं बल्कि आला हजरत अजीमुल बरकत मुकम्मल 1.5 रोटी तनाउल कर लेते हैं। ए मुसलमानों, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं सरकार आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपकी बीमारी में इजाफा हो सकता है, डॉक्टर ने आपको परहेज करने के लिए कहा है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा था अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी क्या तुम्हें खबर नहीं है, पैगंबरे इस्लाम की उस हदीस को पढ़ो, नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो किसी यतीम बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट डाले रब तबारक व तआला उसे जन्नत में आला मकाम अता करता है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह।
یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مقام و مرتبہ ہے. کہاں پاؤ گے مسلمانوں ایسے عاشق کو؟ اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کی حقیقت میں تم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عقیدت کو سینے میں بساؤ, ان کی محبت میں جیا کرو, ان کی محبت میں اٹھا کرو. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی عقیدت رہے گی نا تو پیغمبر اسلام سے محبت کرو گے. یہ قطعی یہ مت سمجھ لینا کہ اعلیٰ حضرت کی محبت کا نام صرف فاتح تک کے مسلمانوں ہے. نہیں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عقیدت و محبت کا نام یہ ہے کہ پہلے نمازوں کی پابندی کرو, پہلے قرآن کی تلاوت کرو, پہلے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرو, اپنے ماں باپ کا احترام کرو. قاری اشرف قادری نے بڑی عقیدت و محبت سے, مہتاب اسماعیلی, حافظ ضمیر الدین, حافظ حبیب اور دیگر بچوں نے بڑی محبت سے اس جلسے کو سجایا ہے. بہت سے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ان بچوں نے جلسے کو سجایا ہے, اور کچھ لوگ ان سے کہتے بھی تھے تم لوگ اس سے کہہ کے کیا کر لو گے. انہیں پتا نہیں ہے کہ اگر ابو لہب پیغمبر اسلام آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ایک لوڑی کو اگر آزاد کر دے تو اسے دوشنبہ کے دن اس کو شہادت والی انگلی سے اسے پانی پیش کیا جاتا ہے. تو ایک جہنمی پر جب رب تبارک و تعالی نبی کا میلاد منانے پر, نبی کے میلاد پر کسی چیز کو صدقہ کرنے پر اس کے انگلیوں میں پانی پہنچا سکتا ہے, تو بلا شبہ ہم تو امت محمدیہ کے ماننے والے ہیں. رب تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا. کیا بات ہے بھائی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات محترم, وقت زیادہ ہو رہا ہے, انشاءاللہ رب العزت پھر موقع ملا تو میں آپ کے درمیان حاضر آؤں گا, کیونکہ آپ سب ہمارے گاؤں کے ہیں, ہمارے علاقے کے ہیں. اس میں بہت سے حضرات ہیں جو مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں, اس لیے کہ حقیقت ہے کہ میں اسی گاؤں میں پلا بڑا ہوں, اسی گاؤں میں رہتا بھی ہوں. تو یہ حقیقت ہے کہ آپ حضرات مجھے مانتے بھی ہیں, میں بھی آپ سب کو محبت کرتا ہوں. دو چار لوگوں سے انبن تو رہتی ہی ہے. دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت پاک صاف ہوں. اگر وہ پاک صاف ہوگا تو منافق ہوگا. جس کی کوئی برائی نہیں کرتا تو وہ دونوں طرف والا ہوتا ہے, ادھر والا بھی ادھر والا. جس کی مخالفت ہوتی ہے وہی اچھا انسان ہوا کرتا ہے. یہیں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے جاتے جاتے یہ پیغام دو کہ کل کے رضا ہے خنزر خوخار برکبار, آدا سے کہہ دو خیر منائے لشر کرے, اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. یہیں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے بولنے میں کہنے میں چھوٹی یا بڑی غلطی تو میری غلطیوں کو معاف فرمائے. میرے اساتذہ کرام کی دعائیں میرے ساتھ رکھے, علماء اہل سنت والجماعت کی دعائیں میرے ساتھ رکھے, میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ رکھے. مادر علمی دارالعلوم اہل سنت تنویر الاسلام قصبہ مرڈوبہ اور دارالعلوم نظامیہ اہل سنت معین الاسلام دھڑیا, ان دارالعلوم پر اللہ اپنا خاص فضل فرمائے. ان یہاں کے طلباء کرام کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اساتذہ کرام پر اپنا خاص فضل فرمائے, کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.